This call is now being recorded. Okay. Okay, so let us start the session. Okay, this time already 5 minutes we have invested, not wasted. So in the last session, actually we have started with the chapter that is process and process scheduling. Okay, it's a second chapter. You already know that this is second chapter, process and process scheduling. Okay, in this particular topic, you are going to learn about this chapter that is the topic which we have already discussed, and then we have started with the process concept. What is exactly a process, and what is the difference between the process and the program? Okay, the difference between the process and the program we have understood with the help of the differentiation, I think, slide, this particular slide, and we came to know that program is just this is not a process. You cannot call it as a process. Okay, but a process is nothing but a program in execution. Okay, and basically a program is just a line of code. Even your process is a line of code, but right now it is executing. So that's why, that is the reason only why we are calling it as a process. Sorry. So it is a passive entity. Your program is passive entity. It is just stored on the hard disk. Okay, but your process is currently running. Right now, it is currently running. It is an active entity. Okay, that's why we are calling it as a process. Okay, because it is in execution process. It is an execution process. It is running. Okay, it is right now. It is located in the main memory. So because of all these things, we can say that this is the active entity. Okay, and excuse me. Purpose में proper. My eyes are blinking. Actually, my eyes are blinking too much. आपको तो उसको पता नहीं. सिर्फ मेरा कहाँ है frames पता नहीं. ये लगाता हूँ. देखता हूँ. Will it be okay or not? Hmm. Okay, so uh, we have seen the difference between this program and the process. Okay, after that, we came to know about the two types of process. One is the user process, and the second is the system process. And then we learned the process elements, and we have seen all these elements. Okay, like we have seen the identifier, then state, and then priority, and then program counter, memory pointer, context data, IO status information, accounting information. So बहुत simple है. All these elements are also present. These are the process element, and these elements are actually present in the in the block which is called as the process control block. Okay, we are going to learn that topic also. That topic is again important. Come for 5 marks. Okay, so let us start with the PCB. Okay, this is the diagram, and you will find all the elements which were there in the process element topic. All those elements are there in the process control block. This is the diagram for process control block. Okay, now let us start with the, and then you will realize that कि वो सारे elements आपके यहीं पर है. Okay, okay, now you'll imagine that your application is executed. Okay, your application execution has started. Okay, so when your program will be executed, when your application will be executed, at that time what will happen? The process will be created. This is clear, I think so, to all of you. Okay, when you double click on any application, when you double click on any program, when you open a VLC player, when you open my computer, when you open MS Word, Excel, PowerPoint, any application, any program, when you open that particular application, it will execute it. It will start executing, and as soon as it will start executing, a process is created behind the scene. Okay, in background, one process for that particular application is being created by the operating system. Okay, so our process is already started now. हमारा application, हमारा program start हुआ, execution start हुआ, and then our process is created. Okay, so background में हमारा process चल रहा है बेचारा. Okay, now OS load. अच्छा, हो रहा क्या क्या है? When you start the application, when you execute any application, then what happen exactly? तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ. ठीक है, operating system loads all or part of the program code from secondary storage into main memory. When you double click on the VLC player, actually your VLC player is installed in which memory? Your VLC player is installed in the
secondary storage, okay, your hard disk. When you install your MS Office, आप जब अपना MS Office install करते हो तो कहाँ पे install होता है? मेन मेमोरी में install होता है या आपकी हार्ड डिस्क में install होता है? ऑब्वियसली आपके हार्ड डिस्क में install होगा, बिकॉज इट्स अ क्या जिसको बोलेंगे इसको हम लोग, क्या उसमें से हम लोग एडिट नहीं कर सकते। कौन सी मेमोरी बोलते हैं इसको? टाइल वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बोलो जल्दी बोलो। कौन सी मेमोरी होती है? इवन आफ्टर शटडाउन दैट पर्टिकुलर थिंग्स रिमेन इन द स्टोरेज, दैट स्टोरेज इज कॉल्ड एज डैश 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 डैश। अरे बोलो, ऐसा आप लोग खामोश बैठ जाते हो, बोलना चाहिए। मैं भी खामोश बैठता हूँ। अरे याद है किसी को कि नहीं याद है? नहीं याद है तो बोलो। अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं? एम आई ऑडिबल? नेमत भाई साहब तो लेफ्ट भी कर लिए। एम आई ऑडिबल? यस ऑडिबल। ओके, जब आवाज आ रही है तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? इट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। याद नहीं है आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में मैंने? वो एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। The volatile memory which the data gets removed when you shut down the system. It's basically a RAM, okay, जिसमें आपका टेम्पररी डेटा आके स्टोर होता है। इट्स अ टेम्पररी मेमोरी, ओके। और आपका सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के अंदर डेटा आपका रहेगा योर हार्ड डिस्क, ओके। इवन आफ्टर शट डाउन योर डेटा योर आपके ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स रिमेन इन योर हार्ड डिस्क इवन आफ्टर द शट डाउन। दैट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। You all know that, but why you people are not telling it, I don't know. Okay, so whenever we open any application, what happen actually, your operating system load some or the part of the particular program code from the secondary storage to the main memory. तो आपका आपने एम एस ऑफिस आपने इंस्टॉल किए तो बेसिकली गया वो हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। और फिर आपने जब उसको ओपन किया, एम एस वर्ड को आपने ओपन किया, व्हेन यू क्लिक ऑन MS Word, okay, so what your operating system will do, your operating system will take some part of the or complete code or a partial code whichever is required from the secondary storage, and then it will load it into the main memory। और जब वो लोड करेगा तब जाकर आपका आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिकली होता है। whenever you open any application, whenever you execute any application, that particular application is being loaded into the main memory from secondary storage। that's a simple process। और उसको वहां से वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के ला के मेन मेमोरी में रखता है। और मेन मेमोरी में जो चीज आती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूशन में आ जाती है। और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ओके। Hope you people are understanding. This is very common thing. Very common. I think this is a very common information you all are having. You must have. Okay. After that, what happens? It creates data structure of the process of that process in the memory called as the PC. Okay. तो भाई साहब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने what your operating system has done, your operating system has picked that particular application का program code, has picked that particular application का program code from the secondary storage and it has put inside the main memory। ठीक है, आपने डबल क्लिक किया VLC पे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने VLC का डेटा, जो VLC एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया था ना, जब इंस्टॉल किया था उस टाइम पे जो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हुआ था वो वहां से पिक करेगा, उठाएगा, लाकर मेन मेमोरी में रखेगा। ठीक है, मेन मेमोरी में लाके रखने का मतलब हुआ है कि अब आपका एप्लीकेशन अब ओपन हो। So you can just imagine कि how fast that particular process is, okay? Your process is so fast that you can't imagine that कि आपका डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में से
आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उठाकर लाकर उसको मेन मेमोरी में रखा है और मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी होती है, ठीक है। तो अगर जैसे आपका प्रोसेसर फास्ट होता है तो एकदम फटाफट i3 i5 i7 i9, सो यू कैन जस्ट इमेजिन द स्पीड ऑफ द प्रोसेस, स्पीड ऑफ द जो आपका एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हुआ, एंड यू कैन इट डिपेंड ऑन द प्रोसेस आल्सो, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपका एक साथ में रन होते हैं, वो डिपेंड किस पर है, आपके रैम पर डिपेंड है, ठीक है। अगर आपका रैम अच्छा खासा है, 8 GB रैम है, सो यू कैन रन मैक्सिमम एप्लीकेशन विदाउट एनी लैगिंग, without any lag, all your application will run simultaneously or smoothly also, okay. तो as soon as your operating system will load some part, मैं just example ले रहा हूँ VLC player का, so when you click on that particular VLC player, your operating system will load or will pick that particular data from the secondary storage and then it will put inside the main memory. तो जैसे ही मेन मेमोरी में रखा, दो काम होते हैं, आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना चालू हो गया, आपको एक VLC की स्क्रीन दिखेगी, ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको जो ओपन करना है, सॉन्ग ओपन करना है, वीडियो ओपन करना है, देन यू कैन ओपन इट, ओके, बट योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ओके, पहली चीज। दूसरा काम ये होता है, your operating system makes a data structure for that particular process, just mark my words, okay. Your operating system makes a data structure for that particular process, that कौन सा प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, हमने कौन सा एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, हमने VLC एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। तो VLC के नाम का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर, एक टेबल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। सो वन डेटा स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, उस प्रोसेस के, उस VLC प्लेयर के प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको उस डेटा स्ट्रक्चर में मिल जाएगी, and that data structure is called as PCB, that is process control block, okay. So process control block is the data structure, process control block is the data structure that is being created by the operating system into the main memory whenever an application is execution is started, okay. So as soon as you start the application, as soon as your operating system start the execution of any application, then one process in background, one process will be created, second PCB will be created, third execution will start, okay. So the तीन काम आपके हो जाते। I hope you people are understanding. Respond me if you people are getting the things regarding this PCB process control block, अगर आपको समझ रहा है तो मुझे बताओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। This is very very important, okay. खाली दो लोग को समझा बस, समझ नहीं लगता आप लोग को, या बाकी लोग सो रहे, फिर सुबह सुबह का टाइम है, फर्स्ट लेक्चर में इसके लिए लिया कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोग फ्रेश होते हैं, इसके लिए मैंने मांग कर फर्स्ट लेक्चर लिया, ठीक है। By keeping this thing in my mind that people are understanding what they're getting, let's move ahead. So यहाँ तक आप लोग को PCB के बारे में समझा। तो PCB is nothing but a data structure created by operating system for the process which has been executed, okay, for the process which has been executed, okay, that is called as the PCB, process control block, okay. It contain all the information, which is required for a process to execute, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पीसीबी में रहती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि यू हैव मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग राइट नाउ एट द सेम टाइम, ओके। सो योर वन प्रोसेस इज एक्सिक्यूटिंग राइट नाउ, प्रोसेस ए इज एक्सिक्यूटिंग, okay. After some time some higher priority process comes in between and then say I just wanna execute, okay, please aside, okay. तो सामने वाला प्रोसेस बी पीछे से आया और बोला भाई मेरी हायर प्रायोरिटी है, मुझे जल्दी से जाना है, जैसे कि एम्बुलेंस आती है और आपको साइड में होना पड़ता है कि भाई ठीक है तू चला जा आगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग पीछे जाते हैं। तो वैसे ही कोई अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अगर आता है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू विल बी प्रीम्प्टेड, योर प्रोसेस विल बी प्रीम्प्टेड। प्रीम्प्टेड मतलब कि आपके प्रोसेस को पीछे कर लिया जाएगा, निकाला जाएगा, मतलब आपको भाई आपका एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए रोक लो, क्योंकि एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जाने वाला है ना, एक जल्द गाड़ी जाना है, तो ऐसा।
तो इट अच्छा जब वो चली गई गाड़ी तो उसके बाद में फिर आपको वापस लेके फिर चले गए। लेकिन जब आपका प्रोसेस ए रन हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, at that time, while coming from the execution mode, then the next topic is that only, that is process state diagram. That is very important. Okay, so उसके उसके ऊपर हम लोग अभी आने वाले हैं, तो उसमें आप लोग एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, so अभी जो जो स्टेट पर आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, तो वो स्टेट आपको क्या करना है, सेव करना है। वरना आपको जब आप 2 मिनट साइड के लिए हट गए, ठीक है, फिर वो आपका प्रोसेस आया पीछे से, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, और एग्जीक्यूट होके चला गया। ठीक है, तो फिर आप जब दोबारा आओगे तो फिर आप सोचते बैठोगे, हाँ मेरे पास में मैंने कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था, और मेरा प्रोसेस कितना परसेंट में रन हुआ था, 20%, 30%, आई डोंट नो। अब क्या करूँ, याद ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखना पड़ेगी, मतलब आपको नहीं, आपके प्रोसेस को। ठीक है, कहाँ स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर स्टोर करें, वो जगह है आपकी पीसीबी। ओके, दैट्स अ पीसीबी ओनली वेयर द प्रोसेस स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रोसेस। ओके, तो इसके एग्जीक्यूशन के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पीसीबी में स्टोर होती है। इट इज यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, दैट इज करंट स्टेट, मेमोरी लोकेशन, ऑल दैट। तो आप प्रोसेस आपका कौन कितना बड़ा आपका फार्म है, फार्म में कहाँ से कहाँ आपने किस चीज को लगाया है वो आपको नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लॉटिंग किसकी है, यहाँ से यहाँ तक प्लॉटिंग किसकी है, यहाँ से यहाँ तक, तो दैट्स अ मेमोरी लोकेशन। ओके, सो इन अ कंप्लीट, मैं आपको थोड़ा सा इसके थ्रू बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझें। लाइक वी हैव, मैं यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये मेमोरी लोकेशन है। ओके, you have this particular memory location, and in this memory location your process one comes। okay, so your process, फिर हम लोग ने एक memory location इतना जगह दे दी। ठीक है, अब इसकी जगह फॉर एग्जांपल 0 से लेकर यहाँ तक एक है x तक। ओके, उसके बाद में आपका प्रोसेस बी आया, दिस इज फॉर प्रोसेस ए। नाउ वी हैव अ प्रोसेस बी। ओके, तो प्रोसेस बी विल एग्जीक्यूट ओवर हियर, इसकी जगह है x से लेकर y तक। so you have a memory location that your b process is executing from x to y। ठीक है, जो भी इसकी वो भी वैल्यूज है, so we'll come to know that your process B is executing in this particular memory location। So it will store all the information, it will store all the information, यहाँ पर ये बता रहा है it will store all the information, और उसकी memory location जो है execute मतलब के याद रखेगा। Okay, that's a PCB। It contains sufficient information so that running process can be interrupted। It contains sufficient information so that, जैसा हम लोगों ने अभी किया, right now I gave you one example that you were running it, you are executing, but at the same time one higher priority process comes in between and then ask you that bhai please मेरे को जल्दी जाना है। Okay, I'm having higher priority than you। So what you will say, okay bhai ठीक है चलो, you will just go and you proceed and you execute, then after you then I will execute। Okay, so it contains sufficient information so that running process can be interrupted। I was the running process, okay, and I've been interrupted for the higher priority process and then resume execution। After the execution of the higher priority process, then I have to resume। तो resume कहाँ से करूंगा मैं, तो वो information मुझे, अच्छा जब मुझे इंटरप्ट किया गया था उस टाइम पे मैंने नहीं ऐसे नहीं निकल जाऊंगा, पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करूंगा, कितनी स्टेटमेंट, कितने इन्फॉर्मेशन मैंने, कितना मेरे प्रोग्राम लाइंस ऑफ कोड मैंने एग्जीक्यूट किया हूँ, what is the percentage। okay, all those information will be stored first and then I will preempt myself। okay, and then I will preempt my process। okay, और प्रिम्प्ट करने के बाद में, निकालने के बाद में, जब निकाल लिया वो भाई साहब आए, एग्जीक्यूट हुए, चले गए, एंड आफ्टर दैट when I will resume then I have all the information which is required to resume the process execution। because मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, हाँ भाई मुझे मालूम है मैंने 24 लाइन्स मैंने एग्जीक्यूट किया था, प्रोसेस बोलेगा मेरे, क्योंकि मेरे पास में डेटा स्ट्रक्चर है, मैंने सेव किया था, and then you will resume and you will start from the 25th line of code। okay, so this is how this PCB is helpful for the execution of process। okay, then उसके बाद में PCB is the key tool to support multiple process execution। with the help of this PCB only it is possible to execute multiple process। otherwise what happen ऐसा ऐसा होता कि आपका पहला प्रोसेस रन हो रहा है और फिर उसको किसी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस की वजह से पीछे आना पड़ा है, भाई साहब जो है, तो भाई साहब तो आ गए ऐसी बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर किए, बिना अपना स्टेटस रिकॉर्ड किए आ गए,
अब आने के बाद में जाके फिर सोचते बैठेंगे अब कहाँ से स्टार्ट करूँ. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प विदाउट द PCB. So this is possible because of the PCB, and with the help of this only we would be able to execute multiple processes. Okay, तो multiple process हम लोग ऐसे ही run कर पाएंगे. When process is interrupted, current values such as PC, that is program counter, CD, context data, okay, these values are stored inside the process control block, and then it comes out, and then when it resumes, so it takes the data, it takes the information of the program counter, that is PC, it takes the data of the CD, that is context data, and then it will resume the execution process. Okay, so ये आपका जो PCB है ये इस तरीके से important है. अब ये मैंने आपको डायग्राम पहले बता दिया. दिस इज द PCB का डायग्राम. अगर डायग्राम है, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट डायग्राम यू कैन ड्रॉ फॉर. अगर कभी कभी वाइवा क्वेश्चंस के अंदर भी यू विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ द PCB diagram. Okay, so in at that particular time or moment of time you can draw this diagram, and all the elements you will find whatever you have seen in the process element. Okay, देखो process element के अंदर आपको ये सारे डायग्राम मिल जाएंगे. Identifier, state, priority, program counter, memory pointer, context data, IO status information, accounting. एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट इसको, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहले ID, identify nothing but the ID, process ID. Each and every process having separate ID. Okay, that's called the identifier. In order to distinguish it from others also. ठीक है, प्रोसेस का नाम मैंने रखा 1, दूसरा प्रोसेस का नाम भी रखा 1, तीसरा प्रोसेस का भी नाम रखा 1. हाउ आई विल बी आइडेंटिफाइड दैट द प्रोसेस 1 बिलोंग्स टू द VLC प्लेयर और MS वर्ड और MS एक्सेल. हाउ आई कम टू नो? नहीं पता कर सकता मैं. सो देयर मस्ट बी अ सेपरेट ID or separate identifier, or we can say unique ID, unique identifier to distinguish the process from others. Okay, second is the state. Okay, I told you that the next topic is process state diagram, and I also told you that our process may be in one of the state, like जैसे कि इंसान है, अभी ह्यूमन बीइंग है, so human being is in any of the one state. एक उसका चाइल्डहुड है, फिर एक टीन एज है, फिर एक फिर मतलब के मतलब जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद में फिर उसकी शादी हो गई, एंड देन लास्ट में फिर बूढ़ा हो गया. तो ऐसे इसके बहुत सारे स्टेजेस है. तो चलो, let us say 5 stages are there. So your human being can be in any of the 5 stages. ठीक है, तो आसपास में वो 5 stages रहेगा. वैसे हमारा प्रोसेस भी है. My process will be in any of the 5 stages I have. I am going to show you right now those stages also, that states also. So हमारा जो प्रोसेस है वो किसी भी एक स्टेट में से रहेगा. ठीक है, या तो अभी वो क्रिएट हुआ है, या तो वो अभी रेडी होके खड़ा है, या तो वो रनिंग में यानी एग्जीक्यूशन में है, या तो उसको स्लीप पे डाल दिया गया है, या तो वो डेड हो चुका है. ठीक है, दीज आर द 5 स्टेट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, राइट नाउ. सो वो जो स्टेटस की इन्फॉर्मेशन देंगे, वो स्टेटस की इन्फॉर्मेशन स्टेट में स्टोर हो. ओके, देन प्रायोरिटी. इफ द प्रोसेस इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रायोरिटी, then that priority value will be stored inside this field. Okay, program counter, address of the next instruction, address of the next instruction to be executed in the program. I told you that you have a VLC player. Your VLC player is nothing but a program code. तो program code के अंदर कितनी लाइन है? 100 लाइन है. तो if 100 lines are there, then अगर आपकी 5 लाइन execute हो चुकी है, तो your PC, your program counter will hold the address of the next instruction. यानी 6th लाइन का क्या रहेगा? नेक्स्ट 6th लाइन का एड्रेस वो अपने अंदर स्टोर करेगा प्रोग्राम का. ठीक है, सिंपल है. देन आपका फिर है मेमोरी पॉइंटर. इट पॉइंट्स टू द प्रोग्राम कोड एंड डेटा. जो लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होने वाला है उसको क्या करेगा? उसके मेमोरी पे क्या करेगा? पॉइंट करेगा. ठीक है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन योर प्रोसेस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट नाउ. फिर वो आपकी वो इंस्ट्रक्शन होगी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो फिर नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, फिर नेक्स्ट को पॉइंट करेगा. दैट्स अ मेमोरी पॉइंटर. उसके बाद में फिर कंटेक्स्ट डेटा. इट इज द डेटा प्रेजेंट इन रजिस्टर्स व्हाइल प्रोसेस एग्जीक्यूशन. तो जो भी तरह का डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल योर एप्लीकेशन, you might have seen in your Android phone or in iPhone also that you'll be having your data for each and every application. So that data is the context data basically. Okay, होता है ना, आप जब अगर कभी डेटा उसका कैश क्लियर करते हो तो डेटा क्लियरेंस का भी एक ऑप्शन आता है. तो दैट डेटा क्लियरेंस का ऑप्शन जो आता है वो आपका कंटेक्स्ट डेटा विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ओके, so that's a context data.
देन IO स्टेटस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग IO रिक्वेस्ट, कितने IO डिवाइसेस लगे, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें वो आपके प्रोसेस में शो करेगा, which is related to that particular application, which is related to that particular process. And then accounting information, it include amount of processor time, इस particular process में प्रोसेसर का कितना टाइम लिया, कितना एग्जीक्यूशन टाइम है इसका, ठीक है, क्लॉक टाइम, टाइम लिमिट्स, रिसोर्सेज कितने यूज किया, कहाँ से किया, वो सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. So these are the important elements which are there in this particular process control block. And process control block is the, is the data structure which is created by the operating system for each and every process in order to maintain the information, in order to resume the interrupted process, okay, and in order to resume it from the sleeping mode, whatever जो भी है, तो सारी information इसके पास में store होती है, जिसकी वजह से अपने सारे काम को easily कर सकता है. ठीक है. So this is all about the process control block. Okay. Now let us move to the very important topic, that is process state diagram. ठीक है. I just want to show you that process state diagram. सबसे पहले उसका introduction है, उसके बाद मैं diagram में आप लोगों को यहाँ पे draw करके बताऊंगा. So that will be simple for you. So as I told you that our process may be in any of the one state. Okay. Our process may be in any of the one state. Just I told you that we have total 5 states. New, where the process is created. Okay. Second, ready, कोट वेट पहन के सब लगा के बैग वैग लेके रेडी हो गया, सो रेडी. उसके बाद में थर्ड है आपका रनिंग, वेयर इट इज एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ. ओके. आई विल टेल यू इन डीप, बहुत इसके हम लोग को टाइम लगेगा प्रोसेस डायग्राम को समझ, एक बार आप समझे ना, सो ऑल later topics and all later things will be very simple for you people. Okay. So just try to concentrate over here as much as possible. Okay. Very simple diagram, very simple concept, बस एक बार समझना है. ठीक है. देन उसके बाद में एक और स्टेट होता है विच इज द स्लीप और वेटिंग स्टेट. ओके. इफ कॉज ऑफ एनी रीजन आप बोलेंगे रीजन क्या है सर, तो कॉज ऑफ एनी रीजन में एक रीजन आ सकता है, इफ योर प्रोसेस वांट्स टू एग्जीक्यूट एनी एक्सटर्नल रिसोर्स, किसी और रिसोर्स को अगर उसको एक्सेस करना है, जब एक्सेस करेगा तो प्रोसेस खाली रहेगा. So at that time your process is not running, your process is going and it is actually using any other resources. तो उसको कौन से मोड में डालेंगे, वेटिंग मोड में या फिर स्लीपिंग मोड में उसको डालेंगे, स्लीपिंग स्टेट में. वहां से होने के बाद में वापस आएगा, रनिंग होगा, रनिंग होने के बाद में वो वहां से क्या हो जाएगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट. व्हेन योर प्रोसेस कंप्लीट्स योर इट्स एग्जीक्यूशन, देन इट्स एंड नॉर्मली, क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. ठीक है. सो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और स्लीप, and then last है dead. ठीक है. So these are the 5 state you need to remember regarding process state diagram. ठीक है. So your process may be in any of the one state, okay, which I just told you right now. Then process life start from creation and ends at the termination. तो process start होगा new से और terminate होगा. In between of these two state, process may reside in any one of the state. And there are different states which are required to support multiple process execution. It contain what? It contain new, then ready, then running, then wait or sleep, and then dead state. Okay, so these are the 5 state. Okay. अब चलो देखते हैं diagram. I want everyone to concentrate over here. कुछ देर के लिए यहाँ पर थोड़ा focus करो because it is important. जिनको पता है, those who are from diploma background, so उनको तो ऑलरेडी ये चीज पता रहेगी. चलो वापस से देखते हैं. I hope this is visible to you all. अरे कुछ तो बोलो. दिख रहा है ना. ओके चलो ठीक. Okay, so this is process state diagram. So I will write away what process state diagram. Oh, sinusoidal. ओके. मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ ताकि आप लोग, मैं एक्चुअली मोटा थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज्यादा लिया हूँ सो दैट यू पीपल कैन इजीली सी. F11, हाँ चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अच्छा रहेगा.
So as I told you that we have very first stage, that is a new state. Okay, यहाँ पर मैं एक state बनाता हूँ, एक मेरा state. This state is called as the new state. This is the state where your process is just created. Okay, आपने एप्लीकेशन पर डबल क्लिक किया है और डबल क्लिक करते से ही जो स्टेट बनेगा वो आपका न्यू स्टेट है, यानी कि आपका प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड, योर प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड, सो दैट्स अ न्यू स्टेट. ओके, ये तो एकदम सिंपल है. आगे चले, आगे चले तो बन गया हमारा दूसरा स्टेट. ओके, दैट्स अ रेडी स्टेट. ओके, दिस इज द रेडी स्टेट. रेडी स्टेट इज द वन इन विच योर प्रोसेस इज ओके. अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा पहले आओ. यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है, सॉरी, हाँ, दिस इज द स्टेट, हमारा जो न्यू स्टेट है, इट इज द स्टेट इन विच आवर प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड and waiting for the required resources to be allocated so that it can execute. Okay, तो यहाँ पर आपका जो है ना, तो प्रोसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका प्रोसेस है, ठीक है. तो अब ये प्रोसेस आपका आपका जो प्रोसेस है, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पर एक और, एक और एक और, यहाँ से प्राइवेसी नहीं रहेंगे. चलो ठीक है. ओके, सो दिस इज न्यू, दिस इज रेडी. अब यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है, इट इज रेडी नाउ. ओके, इट इज क्रिएटेड, योर प्रोसेस इज क्रिएटेड एट दिस पॉइंट and it is waiting for the required resources to be executed for the execution purpose. तो भाई साहब ये रेडी होके, ये क्रिएट होके आ गए अभी. अब ये बोल रहे हैं भाई देखो मुझे बाहर जाना है, जैसे कि एक बच्चा बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे स्कूल जाना है, सो आई नीड माई बैग, आई नीड माई टिफिन, आई नीड माई बॉटल. ओके, all those are the requirement. Okay, so right now at this position यहाँ बच्चा भी just उठा है. I'm just taking one example, just just for your understanding. Okay, so this is the kid or boy. Okay, and waiting for the uniform, waiting for the bottle, waiting for the tiffin, waiting for the bag and all those things. Okay, तो ये बेचारा यहाँ पर, अब थोड़ी देर के बाद में उसकी मम्मी ने उसको सारी चीज दे दी. अब देने के बाद में वो क्या हो गया, रेडी हो गया. सो योर the kid is now ready, the kid is now ready with bag, with uniform, with bottle and with tiffin. Okay, so all the resources has been allocated, all the resources has been allotted to this particular kid. Okay, now he is ready. Okay, तो वैसे ही हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ था. ठीक है, जस्ट क्रिएट हुआ था. अब इस जस्ट वेट. So as I've taken the example that in this particular ready state, your kid has been allocated to all these resources. तो भाई साहब को ये सारे resources मिल गए, टिफिन, बॉटल, बैग, यूनिफॉर्म सब मिल गए. ओके, नाउ ही इज रेडी. अब यहाँ पर मैं वापस प्रोसेस पे आता हूँ, बिकॉज दिस एग्जाम्पल विल नॉट विल नॉट रन मोर. तो यहाँ पर मेरा जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस इज नाउ क्रिएटेड. आफ्टर क्रिएशन माई प्रोसेस विल कम ओवर हियर विद ऑल द रिसोर्सेज. जो भी इसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो सारे रिसोर्सेज को मिल गए. कोई भी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आईओ रिसोर्स, हार्ड डिस्क का रिसोर्स, मेमोरी एलोकेट हो गई. ठीक है, तो सब आपको हो गया. तब एलोकेट होने के बाद में भाई साहब रेडी होके पड़े हैं. ठीक है, तो रेडी स्टेट में ना एक पूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब पूल, या जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोसेस पूल. ओके, दैट पर्टिकुलर पूल, in that particular pool all the processes are waiting, all the processes are waiting to execute themselves. Okay, तो यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोग वेट कर रहे हो, तो आपका प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4, एज यू कैन सी. ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो ऑल 4 प्रोसेस आर वेटिंग ओवर हियर. अब यहाँ पर ऑलरेडी इसके पहले कोई प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा था. ओके, उसके 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 बाद में प्रोसेस नंबर 1 का आया नंबर. ठीक है,
तो अब यहाँ से भाई साहब चले प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पर। तो ये आपका जो स्टेट है ये है आपका रनिंग स्टेट, दिस इज द रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट के अंदर हम लोग को सारे रिसोर्सेज तो मिल गए, अब हमारा नंबर भी आ गया। तो अब ये भाई साहब रनिंग में आ गए। तो जैसे ही रनिंग में आए इसका मतलब क्या हुआ, आपके प्रोसेस को मेमोरी मिल गई है और मेमोरी के अंदर लोकेशन प्रॉपर मिल गया है और भाई साहब अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो योर प्रोसेस हैज स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन इन द रनिंग स्टेट। अब चल रहा है, रनिंग चल रहा है। अब होते होते फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, रन होते कंप्लीट हो गया। Now your execution is completed. Now after execution what will happen, this is the normal case I am talking about. Okay, so after normal execution your process will end normally. What is this? This is the dead state. Okay, so after running when the execution is completed successfully, then your process will be sent to the dead state. यहाँ पर आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ओके, बिकॉज योर प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, द एग्जीक्यूशन हैज बीन कंप्लीटेड नॉर्मली। ओके, उसमें एग्जीक्यूशन जो कंप्लीशन होता है वो दो होता है, एक तो होता है नॉर्मली और एक होता है एबनॉर्मली। वो मैं सेकंड केस आपको बताता हूँ। ओके, सो ये आपका फर्स्ट केस था। जैसे आपका फर्स्ट एग्जीक्यूशन हो गया और रनिंग से निकल गया, तो आपका सेकंड वाला प्रोसेस, द प्रोसेस विच यूर वेटिंग एट द रेडी स्टेट इन द पूल दैट प्रोसेस वाज वेटिंग ओवर हियर, सो इट विल कम ओवर हियर and it will start executing. तो आपका प्रोसेस नंबर 2 has started the execution. after completion successfully it will again go to the dead state। आऊंगा मैं भी उसके ऊपर भी आऊंगा। और होने के बाद में इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मली एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अब आया आपका प्रोसेस नंबर 3। नाउ योर प्रोसेस नंबर 3 विल बी मूव फ्रॉम दिस रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट। where process number 3 will be moved from ready state to the running state because right now no one is there। ठीक है, उसी का नंबर है, प्रोसेस नंबर 3 का नंबर है। तो ये प्रोसेस नंबर 3 will come at this particular location। okay, so your process number 3 comes over here and it will start executing। अब 50% एग्जीक्यूशन के बाद में इसको आ गया कुछ रिक्वायरमेंट। ठीक है, मे बी आईओ रिक्वायरमेंट, ओके, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। तो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कुछ डेटा लेना है, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव से कुछ डेटा लेना है। तो पेन ड्राइव से डेटा लेने के लिए इसको क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा। जब ये रुकेगा एंड इट विल बी यूजिंग द आईओ रिसोर्सेस और एनी अदर एक्सटर्नल रिसोर्स, देन योर operating system will move that particular process from running to the sleeping or waiting state। this is wait or sleep। दिस इज द वेटिंग और स्लीपिंग स्टेट। यहाँ पर आपके प्रोसेस नंबर 3 को भेजा जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 3 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, प्रोसेस नंबर 3 क्या यूज कर रहा है, आईओ यूज कर रहा है। आईओ दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर रहा है, कोई और रिसोर्स यूज कर रहा है, एक्सटर्नल रिसोर्स यूज कर रहा है। तो वो रिसोर्स यूज करने के चक्कर में वो भाई साहब को भेज दे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही प्रोसेस नंबर 3 को यहाँ भेजे तो अगेन आपका रनिंग स्टेट में कोई नहीं है अभी। ठीक है, आपका प्रोसेस नंबर 3 यहाँ भेजे तो क्या भेजेंगे, प्रोसेस नंबर 4 को यहाँ पर भेजेंगे, प्रोसेस नंबर 4 को यहाँ पर भेजेंगे। तो आपका प्रोसेस नंबर 4 यहाँ पर आ गया। तो प्रोसेस नंबर 4 आपका यहाँ पर आके, अभी 3 है नहीं यहाँ पर बिकॉज 3 गया है अभी बाहर घूमने के लिए। प्रोसेस नंबर 3 राइट नाउ इट इज इन द वेटिंग और स्लीप स्टेट। ठीक है, why it has gone to the sleep or waiting state, because it was asking for the IO resource or any other network resource। so वो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए वो गया। ठीक है, तो उसने प्रोसेसर को छोड़ दिया यानी कि रनिंग स्टेट को छोड़ दिया। एंड जैसे ही उसने रनिंग स्टेट को छोड़ा तो हमारे पास में जगह खाली हो गई, और जैसे ही जगह खाली हुई हमने रेडी स्टेट से और एक प्रोसेस को आगे बुला लिया। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 4 रन हो रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस नंबर 4 को भी कुछ रिक्वायरमेंट आया, प्रोसेस नंबर 4 को भी कुछ। अच्छा, उसी मीन वाइल जैसे ही प्रोसेस नंबर 4 एग्जीक्यूशन चल रहा है तो एट द सेम टाइम योर प्रोसेस नंबर 3 विच वाज इन द वेटिंग और स्लीप स्टेट, इट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, नॉट कंप्लीटेड, इट हैज कंप्लीटेड द टास्क, whatever was there, whatever was the IO requirement, it is completed now and again it wants to come back to the running state। इसको रनिंग स्टेट पे वापस आना है। ठीक है, अब जब रनिंग स्टेट पे इसको वापस आना है
तो मैं वो बता रहा था डायग्राम, कहाँ पर है डायग्राम। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, आपको मैं डायग्राम डायरेक्टली पहले एक बार दिखाता हूँ। सी दिस वन, वेटिंग में जाने के बाद में अगेन इट हैज टू कम टू द रेडी स्टेट, बिकॉज उसके पास में आप उसका 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 पीसीबी है ऑलरेडी। तो आईओ ऑपरेशन के बाद में वॉट एवर आईओ ऑपरेशन इट इज परफॉर्मिंग, तो उसके बाद में फिर वो डायरेक्ट रनिंग पे नहीं आ सकता, तो कहाँ पर आना पड़ेगा उसको, रेडी स्टेट पर आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर वापस बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में आपका प्रोसेस नंबर 3, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो पूछना, बिल्कुल पूछो, ठीक है। सो यू हैव प्रोसेस नंबर 3, जो कि आयो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए गया था यहाँ पे रनिंग स्टेट छोड़ के। तो क्या हम उसको दोबारा यहाँ से दोबारा यहाँ पर ले लेंगे, बोलो। इस प्रोसेस नंबर 3 को क्या हम लोग वेटिंग और स्लीप स्टेट से डायरेक्ट रनिंग पे ले लेंगे, बिकॉज रनिंग स्टेट तो क्या बोलेंगे इसको, एकदम चलती हुई ट्रेन है, इसमें डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसको, हम लोग को एक पुराने अपने रेडी स्टेट में लेना पड़ेगा। तो आपका जो प्रोसेस नंबर 3 है, प्रोसेस नंबर 3 वापस से क्या जाएगा, आपके रेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से रेडी स्टेट में आया, रेडी स्टेट में आने के बाद में फिर यहाँ पे लाइन लगाया, आपका प्रोसेस नंबर 4 तो निकल गया है। तो प्रोसेस नंबर 3 ने वापस से लाइन लगाया, और लाइन लगाने उसके पास में स्टेटस है, उसके पास में इंफॉर्मेशन है, उसके पास में पीसीबी है, इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन, उसका 50% कंप्लीशन हुआ था। Your process number 3 has already completed 50%. Now the 50% is remaining. So for that 50% it will be in the queue. And जैसे ही 4 नंबर यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर अब 3 का नंबर आया, और 4 ने फिर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। 4 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, चलो लेट अस से प्रोसेस नंबर 4 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। अभी आपका ये आपका भाई साहब 50% पे रुका हुआ था, ठीक है। अब 50% पे आपका प्रोसेस नंबर 3 वापस आया, ठीक है, और ये 50% बाकी है इसका। अब यहाँ पर आएगा, अपना 50% कंप्लीट करेगा, और जाएगा वापस से एग्जीक्यूशन, मतलब कि डेड के लिए, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा एकदम वो हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो हम लोग इसको भी गंदा करेंगे, ठीक है। सो वापस एक बार देखते हैं। अच्छा, इसके 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 अंदर एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेस स्लीप और वेट में गए हैं, ओके। योर प्रोसेस इज राइट नाउ इन द स्लीप और वेट स्टेट कॉज ऑफ एनी आईओ और रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ओके। रिसोर्स रिक्वायरमेंट था, रिसोर्स एक्सेस करने गया था, और वहीं से उसको क्या हो गया, वहीं से चला गया डेड स्टेट में। क्यों चला गया, कि कोई भी रीजन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अचानक से कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, अब वो एक्सेस कर रहा था, उसी में आपने कर दिया, तो जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, तो आपका प्रोसेस क्या हो गया, अचानक बंद हो जाएगा। प्रोसेस विल गो इनटू द टर्मिनेशन स्टेज। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रोसेस है वो यहाँ से भी टर्मिनेट हो सकता है, यानी कि डेड हो सकता है। इसको बोलते हैं एब एब एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन। और यहाँ से जो होता है एग्जीक्यूशन कंप्लीट होके होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन, नॉर्मल टर्मिनेशन, ओके। तो चलो एक बार वापस से हम लोग वापस से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना, वापस से बोल रहा हूँ। तो योर प्रोसेस इज नाउ क्रिएटेड, योर प्रोसेस इज नाउ क्रिएटेड, ओके। इट इज जस्ट क्रिएटेड, द पीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो पीसीबी में आपका आपका बन गया। अब पीसीबी बनने के बाद में अब ये वेट कर रहा है कि द रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू मी, ओके। द रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू मी सो दैट आई विल गो फॉर द एग्जीक्यूशन। तो भाई साहब यहाँ ने वेट किए, भाई साहब को सारा रिसोर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, द रिसोर्स एलोकेटेड। तो ये आपका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हमने क्या किया, सारे रिसोर्सेज दे दिए। रिसोर्स नंबर ए, रिसोर्स नंबर बी, रिसोर्स नंबर सी, रिसोर्स नंबर डी वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो हमने सब दे दिया। ये आपका प्रोसेस ए है, ठीक है, ये प्रोसेस ए है आपका। इसको 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 हम लोगों ने रिसोर्सेज भी दे दिए। नाउ इट इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो रेडी में डाल दिया इसको। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस है आपके, ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस आर वेटिंग जस्ट लाइक द प्रोसेस ए, ओके। सो व्हेन द टर्न्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ए विल कम, ओके, so it will go to the running state, okay। जैसे ही रनिंग में डालें तो इसको सीपीयू का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। Your processor will start the execution of this particular process A
with all these resources. Okay, तो आपके भाई साहब प्रोसेस ए यहाँ पर आ चुके हैं. तो प्रोसेस ए के पास में with all these due requirement, with all these particular resources, it has started the execution. अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ. एग्जीक्यूशन के बाद में से कुछ आईओ ऑपरेशन करना है, आईओ रिक्वायरमेंट है उसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करना है, तो उसको रनिंग स्टेट से बाहर आना पड़ेगा. बिकॉज वो ऐसा नहीं कि भाई रुको वहीं पे रोक के रखो, मैं जब तक ये काम अपना निपटा के आता हूँ. तो अब हम अपने प्रोसेस को आइडल नहीं रख सकते. वी कैन नॉट लीव आर प्रोसेस आइडल. We have to utilize in the previous one evolution of operating system, types of operating system में एक मोटो आया था, ऑब्जेक्टिव्स में आया था कि we have to keep our processor as busy as possible so that we can get the maximum utilization. Okay, तो इसके लिए हम अपने प्रोसेस को प्रोसेसर को एज इट इज रख नहीं सकते. क्या करना पड़ेगा? ठीक है भाई, तू जा रहा है ना, तो मैं किसी तरह प्रोसेस को जब तक रन करता हूँ. तो प्रोसेस बी यहाँ पर बेचारा वो था, तो प्रोसेस बी यहाँ पर भी आया. ठीक है, प्रोसेस बी आपका यहाँ पर भी आया. तो फिर जैसे ही प्रोसेस ए आपका वेटिंग में गया या स्लीप में गया, इसका मतलब आईओ ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने गया है. ठीक है, यह प्रोसेस ए आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए गया, तो प्रोसेस बी को हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, सॉरी यहाँ से करना चाहिए मुझे. तो प्रोसेस बी को हम लोगों ने बुला लिया. अब प्रोसेस बी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन होने के बाद ये क्या हो गया, नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया. नॉर्मल टर्मिनेशन डेड, आपका प्रोसेस कंप्लीट. ठीक है, उसके बाद में अच्छा टर्मिनेट कब हुआ, आपने वीएलसी प्लेयर चालू किए थे, ओपन किए थे, नाउ यू हैव क्लोज वीएलसी प्लेयर. ठीक है, अच्छा रनिंग में आपने क्लोज कर दिए, तो कौन सा होगा टर्मिनेशन? इट कैन बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल टर्मिनेशन. हम लोग ने इसको क्लोज कर दिया बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड जितना भी वो देखना था, देख चुके हम लोग, वीडियो देख चुके हैं. नाउ इट इज कंप्लीटेड नाउ, तो उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, तो हो गया आपका नॉर्मल टर्मिनेशन. ओके, अभी इसके बाद में आपने आपका प्रोसेस ए नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया, प्रोसेस बी इज एग्जीक्यूटिंग नाउ. नहीं सॉरी, प्रोसेस बी यहाँ पर आया था आपका, प्रोसेस बी रनिंग हो रहा है और प्रोसेस ए आपका यहाँ पर आया है. ठीक है, प्रोसेस ए वेट कर रहा है और यहाँ पर वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. क्या हो रहा है? आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है आपका प्रोसेस ए. ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में क्या, उसको हम लोग यहाँ से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देंगे कि चला जा रनिंग में. चलती ट्रेन के अंदर तो हम उसको ले नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, उसको किसी स्टेशन पे बुलाना पड़ेगा. और वो स्टेशन कौन सा है आपका? आपका रेडी स्टेट स्टेशन है. ठीक है, तो रेडी स्टेट पर उसको बुलाएंगे तो वापस आएगा. अब यहाँ पर जो भी प्रोसेस है उनके साथ में वो लाइन में लगेगा. ठीक है, और लाइन में लग के जब उसका नंबर आएगा तो फिर यहाँ पर वापस से रनिंग में आएगा and it will complete its execution whatever was remaining, and it will complete normally, and it will end normally, and it will terminate normally. Okay, so this is the diagram for process state diagram. Very simple diagram. Start from the creation, when the process it is also called as the new state, where the process is created, and then it will ask for all the requirements, maybe resources. Okay, it is required for the execution of that particular process. So it will ask all the resources it will ask. Then आपका जो operating system it will allot all the required resources to that particular process. Then now it is ready. Okay, so it comes to the next state, that is ready state, that I am ready with all these resources to execute. Okay. When your process का turns will come, then it will go to the running state. Okay, after going to the running state, it will start execution. When it's complete, case one, when it complete the execution normally, it will go to the dead state and complete, done. Okay, second case, while in the running state, your process may require any IO resources. Okay, your process may require any IO resources or any network resource. So in order to access those resources, it has to come to the next state, that is the wait or sleep state. Okay, तो उसको रनिंग स्टेट से स्लीप और वेटिंग स्टेट में आना पड़ेगा, बिकॉज वहां बैठे बैठे दैट इज इन द रनिंग स्टेट. बीइंग इन द रनिंग स्टेट, इट कैन नॉट एक्सेस द आईओ रिसोर्स. रनिंग स्टेट में बैठे बैठे आईओ रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज सीपीयू भी एक रिसोर्स है. तो सीपीयू भी हाथ में लेगा और आईओ रिसोर्स भी हाथ में लेगा, दोनों कैसे चलेगा? दोनों में से कोई एक चीज उसको हाथ में रखना है. ठीक है, तो या तो प्रोसेस से पूरा कंप्लीट कर ले, या तो अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कुछ अगर एक्सेस करना है तो वो एक्सेस कर लो, इसको छोड़ दो.
तो वही करेगा वो, आपके प्रोसेसर के रिसोर्स को छोड़ देगा, मतलब जस्ट बीन टाइम बीइंग के लिए छोड़ेगा। और जैसे ही छोड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, मैं इसकी बात कर रहा था जैसे ये छोड़ेगा यहाँ पर, मतलब रनिंग स्टेट से छोड़ेगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपका पीसीबी will come into action. Your PCB will come into action and your PCB will store all the information, कि कितना complete हुआ, कितना percentage. I know the time is 10:55, but I need to complete this one. Just 2 minutes. Give me 2 minutes, okay? So we have a PCB for each and every. Here your PCB will come into action and will store all the required information into the PCB. And I told you that PCB is for each and every process. PCB is for each and every process. तो process A के लिए भी है, process B के लिए भी है, process C के लिए भी है, whichever are coming for the execution. Okay. So when your process is coming from the running to the waiting or sleeping state, then it will store all the information कि भाई मेरा 50% complete हुआ, मैं ये instruction पे था, मैं ये line पे था, मैंने ये resource use किए, सारी information इसमें store होगी. It will come over here. आने के बाद में यहाँ पर होने के बाद में IO resource यूज कर लिया, एक्सेस कर लिया, वापस गए भाई साहब रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में जाने के बाद में वापस से लाइन लगाएंगे, लाइन लगा के वापस से रनिंग स्टेट में आएंगे, रनिंग में आके वापस एग्जीक्यूट होंगे। कितना पूरा 100%? नो, जहां पर छोड़कर गए थे। इसीलिए तो हमने पीसीबी दिया है आपको भाई साहब, कि पीसीबी, बाय लुकिंग एट द पीसीबी एंड बाय रिफरिंग टू द पीसीबी, योर एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट। ओके, and after completion it will end normal। okay, so new से ready, ready से running, running से dead, नहीं तो running से sleep, sleep से ready, ready से running, running से dead, या फिर new से ready, ready से running, running से wait और sleep, और wait और sleep से directly dead। इसको बोलते हैं abnormal termination। okay, so this is the diagram for process state, in which you will find there are five different state in which your process may reside. Okay, starting from the new, ready, running, wait or sleeping, and dead. You may find different diagram, but this is the most simple one you will find. This is my diagram. Okay, I have referred multiple books, and you have to draw this diagram on. Okay, you just refer this diagram. This is the simplest one. दूसरे दूसरे डायग्राम में आपको अलग अलग दिखेंगे कुछ डॉटेड लाइन, ये वो ड्रॉ करना है कर सकते हैं, नॉट एन इशू, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन फ्रॉम व्हिच यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ओके, इतनी देर वेट करने के लिए थैंक यू, बिकॉज clear screen, discard। okay, I'll stop the recording first।